قرآن کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کو پروفیسر رابن داؤد کی آج ہم آپ کے سامنے وی این انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور جیسا کہ آپ کو ہر بار بتایا جاتا ہے کہ وی این انسائٹ ود رابن داؤد آئزک ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر کی ایک پراؤڈ پریزنٹیشن ہے، جس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے ینگ پروفیشنلز ہیں، یا لائف کے ہر فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں وہ تمام لوگ جو آگے بڑھنے کا ایمبیشن رکھتے ہیں، یہ پروگرام وی این انسائٹ ان کے لیے مشعل راہ ہے. اور بہت ہی خوشی کی بات ہے، خداوند کا فضل ہے ہماری زندگیوں پر، اور میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرپور ہے. ہم ایک نئے سال میں جب داخل ہوئے ہیں، سال 2021 میں خداوند نے ہمیں نیا سال دیکھنے کا موقع اور نیا سال دیکھنے کا شرف بخشا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک ٹریڈیشن ہی ہونا چاہیے کہ ہم سال بہ سال ہر ایک نئے سال میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اپنا پورا سال گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سے زندگی کی دوڑ میں مگن ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کرسچن بلیور ہوتے ہوئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈیویجول ہوتے ہوئے، ایک انسان ہوتے ہوئے بھی ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. جیسے جیسے وقت جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، جو ہے وہ ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز بھی دیتا ہے، اور وقت اس کے ساتھ ساتھ اس کے کانٹریری بہت سارے چیلنجز بھی ہمارے لیے لے کر آتا ہے. تو یہ بینگ دا ہیومن ہم پر ہے کہ ہم ان ساری سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیسے اوور کم کرتے ہیں، کیسے ان سے ان سے نبردست ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جب ایک نیا سال ہماری زندگیوں میں آیا، جبکہ گزشتہ سال ایک بہت ہی ایک ٹف سال تھا پوری دنیا کے لیے، خصوصاً نہ صرف ایک پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے، بلکہ اس نے نہ صرف میڈیکلی طور پر بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹس کریٹ کی، بہت سارے لوگوں کی جانیں لیں، بہت سارے لوگوں فیئرس میں مبتلا کیے، بلکہ دوسری طرف معاشی لحاظ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹریس کا شکار ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انڈیویجولس بلکہ اگر ہم اس کو بڑے اسکیل پر دیکھیں، سیلف بھی جو ہیں وہ بہت کرائسس میں سے گزری. میں سمجھتا ہوں کہ ان سب حالات میں سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے اور گین کرتے ہیں کہ ہمیں لائف میں اپنے آپ کو کن لائنز پر لے کر چلنا ہے. جبکہ ایک نیا سال ہماری زندگیوں میں آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر سال جب گزشتہ سال ختم کرتے ہیں تو اپنے آپ کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ کچھ تہیے کرتے ہیں کہ ہم اگلے سال جو ہے ایسا کریں گے اور ایسا نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گول اورینٹڈ پرسن بننا جو ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے ہماری لائف کا، جو ہمیں اپنی لائف میں ایک سیٹسفیکشن دیتا ہے، ہمیں لائف میں ایک جینے کا ایمبیشن دیتا ہے، ایک گول دیتا ہے کہ ہمیں لائف میں کیسے گول کو گین کرنا ہے. اور جس طرح کہ میں آپ سے اپنے گزشتہ پروگرامز میں بھی اس بارے میں، اس ریسرچ کے بارے میں شیئر کر چکا ہوں کہ ایک اوور آل سروے کے مطابق صرف 9% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے کو اچیو کرنے کے لیے ان کو فالو اپ کرتے ہیں. باقی 91% وہ انسان ہوتے ہیں جو کہ اپنے گولز تو ضرور بناتے ہیں، پیپر ورک ضرور کرتے ہیں کہ ایسا کریں گے اور ایسا نہیں کریں گے. جیسے جیسے وقت گزرتے رہتا ہے تو وہ اس کے اوپر فالو اپ نہیں کرتے اور وہ اپنے گول سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ ایک سکیٹرڈ لائف گزارتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جبکہ دو بہت بڑے چیلنج، جہاں پر دیگر چیلنجز ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، تو وہاں پہ ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ وقت کی مینجمنٹ کرنا جو ہے، دیٹ از دا بگیسٹ چیلنج ان آور لائف. اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے آپ ہم ایک اسکیٹرڈ انسان کے طور پر، یعنی کہ ایک بکھرے ہوئے انسان کے طور پر اپنی زندگیوں کو اس لیے گزارے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے وقت کا ڈویژن جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں کی ہوتی کہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا، کون سا کام کس وقت کرنا ہے اور کون سا کام کس وقت ہمیں نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ ایشو از دا بگ پرابلم.
और दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि हम लोग जबकि हमें हर जगह जगह पर हमें बहुत सारी स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मायूसियों को, ख़ास तौर पर आज के दौर का एक बड़ा जो चैलेंज है वो मायूसियाँ हर तरफ प्रिवेल कर रही हैं, फियर्स प्रिवेल कर रहे हैं। फियर्स किस चीज़ के प्रिवेल कर रहे हैं कि इंसान जो है वो अनसर्टन है, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सारे फियर्स रखते हैं, और ये सब सूरत हाल जो है वो इंसान को ज़हनी तौर पर, इंसान को इमोशनली तौर पर जो कर रही है, वीकन कर रही है, यानी कि कमज़ोर कर रही है उसको इस सूरत हाल का सामना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम चंद चीज़ों को फॉलो करें, ख़ास तौर पर ना सिर्फ इस साल 2021 में बल्कि इसके साथ साथ आइंदा आने वाले सालों में भी, ये वक्त जबकि बहुत स्पीड से गुजर रहा है, बहुत बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है, और इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह गुज़िश्ता 10 साल भी अभी लगता है हमें कि कल की बात ही तो थी। तो इवन के हम अगर अपने गुज़िश्ता चाइल्डहुड टाइम पे, अपने बचपन के वक्त पर देखें, अपने स्कूल टाइम के बारे में देखें, तो अभी अगर हम अपने पुराने कुछ फेलोज को मिले तो हमें यही लगता है कि अभी तो सिर्फ कल की बात थी। तो मैं समझता हूँ कि इस गुजरते हुए तेज़ी के साथ जो वक्त गुजर है, इस जिम्मेदारी है कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक पीसफुल और एक हैप्पी लाइफ गुजार सकें, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें, प्रॉस्परस लाइफ गुजार सकें, तो मैं समझता हूँ कि हमें चंद चीज़ों को फॉलो करना है। हाउ टू सेट द गोल्स इन आवर लाइफ, ये हमारा आज का प्रोग्राम का टॉपिक है, और हमारा इस मौजू को हम लेकर चलेंगे कि हमें गोल ओरिएंटेड बनना, चूँकि एक चैलेंज बतौर इंसान दरपेश होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें चंद चीज़ों को फॉलो करना है ताकि हम जो है अपने गोल्स को अच्छे तरीके से फॉलो इंश्योर कर सकें कि हम अपने तमाम वो मकासद जो हमने ना सिर्फ इस साल के लिए रखे हैं बल्कि उसके साथ साथ अगले सालों के लिए भी, तो उसको हम कामयाबी के साथ समेटते चले जाएं। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमें बतौर इंसान अपने आप के ऊपर गौर करना है। गौर व फिक्र करने का एक स्टेज या स्टेप जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक तवातर के साथ एक ऐसी ज़िंदगी को गुजारें जिसमें शायद हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपने आप के बारे में सोचें, मतलब वहाँ पे अपने आप के बारे में सोच फिक्र करें और या अपने आप के बारे में कोई फैसला कुन मरहले की तरफ जा सकें। तो सबसे पहला स्टेज और या सबसे पहला स्टेप जो है उस सारे काम में हमें दर्श है। सबसे पहले फैसला साजी करना अपने आप के बारे में कि हम लाइफ में क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, और फिर उसके साथ साथ जब हम लाइफ के मुख्तलिफ स्टेजेस पर पहुंचते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां जो हैं वो मज़ीद बढ़ती चली जाती हैं। मसलन पहले सिर्फ हम जिम्मेदारियों से खाली होते हैं, हमारा काम सिर्फ इब्तदाई स्टेजेस पर सिर्फ तालीम हासिल करना होता है। फिर उसके साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी पर्सन, और बहुत सारी। तो इस सारे स्टेजेस में मैं समझता हूँ कि हमारी मैनेजमेंट ऑफ लाइफ जो है एक बड़ा फैक्टर है। गुज़िश्ता साल में जब हर तरफ हम मायूसियों का दौर था, और हम देखते हैं कि जब हम ख़ास तौर पर मीडिया न्यूज़ सुनते हैं और देखते हैं और हर तरफ हमें मनफी खबरें सुनने को मिल रही होती हैं कि वबा की वजह से कितने लोग हलाक हो गए, और उसके बाद जो सराउंडिंग्स में बहुत सारी वॉर्स चल रही हैं या जो इकोनॉमिक सिचुएशंस के क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये सब के सब जो हैं इंसान को एक इडियम हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एडिंग सॉल्ट टू द इंजरी, यानी कि जल्दी के ऊपर तेल का काम करना। तो उसमें इंसान जो है वो मज़ीद डिसअपॉइंटमेंट्स में गिरता चला जा रहा होता है। और बीइंग द रिसर्चर होते हुए, बीइंग द एजुकेशनिस्ट होते हुए, बीइंग द ट्रेनर होते हुए, इस प्रोग्राम के होस्ट होते हुए, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हम सब की जिम्मेदारी है वहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेरी भी जिम्मेदारी है बतौर रिसर्चर होते हुए, आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप जबकि घर में आपकी जिम्मेदारी एक पासबान, एक हेड की है, आप कलीसियाई पासबान है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है वो अच्छे तौर पर इस चीज़ को एनालाइज करें कि आपसे जो अटैच लोग हैं उनको कैसे आपने मायूसियों से बाहर निकालना है, उनको कैसे उनके लिए हेल्पफुल बनना है आपने कि वो अपना एक क्रूशल रोल प्ले कर सकें, और कैसे जो है वो अपनी लाइफ की उन मनाजिल को तय कर सकें
کہ آپ نے ایک گول اورینٹڈ پرسن بننا ہے، چونکہ یہ کام جو ہے وہ افراد سے شروع ہوتا ہوا خاندانوں پہ اور خاندانوں سے پھر تشکیل تک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک واسٹ سیریز ہے. دس از کالڈ ایز دا واسٹ اسکوپ، جس میں کوئی انڈیویجول، کوئی ایک سنگل فرد جو ہے وہ یہ سب کام نہیں کر سکتا. ہمیشہ اس بات کے اوپر فوکس کرتا ہوں، بلکہ آپ کی بطور خاندان کے سربراہ ہوتے ہوئے یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو کیسے مایوسیوں سے باہر نکال سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاسبان ہوتے ہوئے آپ کی اپنی کلیسیا کے لوگوں کو کس طرح ایک امید دلا سکتے ہیں، ایک جو سچائی پر مبنی امید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک استاد ہیں تو ایک استاد ہوتے ہوئے کس طرح آپ نہ صرف ایک اچھے مولم میں ایک اچھے درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب جو نئی نسل ہے اس کو ان تمام چیلنجز سے کیسے آگاہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کولیکٹیو ٹاسک ہے کہ جس کو کولیکٹیولی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس کام کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ گول اورینٹڈ ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے گولز کو ون بائی ون جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے ہیں، لیکن اتنے زیادہ بے شمار گولز نہ ہو کہ ہم ان کو اچیو نہ کر سکیں. اس کو اگر آپ لے کر چلیں گے یا چند مقاصد کو آپ لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپیریٹیولی آسان کام ہوتا ہے ان کو پورا کرنا یا ان کو اکمپلش کرنا یا ان کو فلفل کرنا. لیکن اگر ہم اتنے بے شمار گولز رکھ لیں گے اپنے سامنے تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ان کا ایک تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے شارٹ ٹرم گولز کیا ہیں، آپ کے میڈیم ٹرم گولز کیا ہیں اور لانگ ٹرم گولز کیا ہیں. ان کی ڈویژن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل شارٹ ٹرم گولز کہ آپ اگلے 6 ماہ سے 1 سال کے دوران میں آپ کے کیا گولز ہیں. فار ایگزامپل آپ ایئر 2021 میں آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں اس سے تھوڑی واسٹر اسکیل پہ کہ میڈیم ٹرم کے گولز کی ہیں کہ آپ 2 سے 3 سال میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لانگ ٹرم گولز کی کہ آپ اپنے لانگ ٹرم گولز یعنی کہ اگلے 5 سے 10 سال میں آپ کیا کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لائف کچھ ایسے ڈیسیژنس ہیں جس کے اوپر آپ کی پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کے پوری لائف کا انحصار جو ہے وہ آپ کے زندگی کے ان چند فیصلوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ فیصلے کرتے ہوئے خاص طور پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز کو بھانپیں اور جانچیں کہ آپ نے زندگی میں کیا اچیو کرنا ہے. خاص طور پہ میں آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا کہ 3-4 فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کی پوری لائف ڈیپینڈ کرتی ہے. خاص طور پہ سب سے پہلے ایجوکیشن یا تعلیم. جب آپ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کس اسکوپ آف ایجوکیشن، کس فیلڈ آف ایجوکیشن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور کس وجہ سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. آپ نے کیا چوز کی، کیا سوچ کر اس فیلڈ آف اسٹڈی کو چوز کیا اپنی لائف کے لیے کہ آپ اس کو اپنا فیوچر میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی، بیکاز کہ اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے چونکہ ریسٹ آف دا لائف آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ مطلب اس فیلڈ آف ایجوکیشن کے ذریعے سے کو ہی سو دیٹ از وائی بی وائز ان چوزنگ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اور اس کے لیے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں اپنے جو سراؤنڈنگس میں اپنے اساتذہ ہیں ان سے، اپنے وہ لوگ جو گزر چکے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سینئرس ہیں یا جو بھی تمام لوگ جو آپ کو کریئر کے لحاظ سے اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں تو ضرور آپ ان سے ایڈوائس لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں میں ہمیشہ سے اس بات کے اوپر بینگ دا ہوسٹ آف دا پروگرام تمام جو کلیسیائی پاسبان ہیں ان پر اس بات کے اوپر خاص طور پر ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنی کلیسیاؤں میں بھی جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپرچول ایجوکیشن دی جاتی ہے وہاں پہ دنیاوی ایجوکیشن کو بھی ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کا چاہے ونس اے منتھ یا ٹوائس اے منتھ ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کروائیں، لائک کریئر کاؤنسلنگس یا اویئرنیس پروگرامس یا
ना सिर्फ एजुकेशन काउंसलिंग्स बल्कि इसके साथ साथ माइंड डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। आपने माइंड डेवलपमेंट की जहाँ पे हम बात करते हैं तो ये माइंड ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप माइंड ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है इसको आप फॉर एग्जांपल आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे इंटरनेशनली रिनाउंड मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रेनर्स होते हैं, आप उनकी उससे गाइडेंस सीख कर सकते हैं। अब मतलब फ्रीक्वेंटली इससे ना सिर्फ आपकी जर्नल लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल इम्प्रूव होती है, बल्कि माइंड ट्रेनिंग के हवाले से हम जो है तो इसको आप अपनी एक्टिविटी का ज़रूर हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे कोशिश करें कि बेशक अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आजकल आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट के ऊपर रोज़ाना जो है वो न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो आप नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को बेशक 30 मिनट्स रखें। तो चाहे आप डेली का एक आर्टिकल पढ़ें इंग्लिश में, उससे आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव होगी और उसके साथ साथ आप जो है वो जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में भी नो हाउ गेन करेंगे, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तो ये हमारा सबसे पहला गोल था। उसके बाद सेकेंडली हम ये देखते हैं कि जो सोशल मीडिया का यूज़ है उसमें हमें उसके ज़रिए से कैसे हम गेन कर सकते हैं। सोशल मीडिया को ज़्यादातर यूटिलाइज़ किया जा रहा है टाइम पास एक्टिविटी के लिए, और फिर हम अक्सर ये कहते हैं कि जी वक्त नहीं है। वक्त क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास जो फ्री वक्त भी होता है वो सब का सब हम सोशल मीडिया की पोस्ट को लगाने पे और उसको रीड करने पे और उस पर अपना सारा वक्त गुजारते हैं। सो क्यों ना हम इस इंटरनेट को जो है वो किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि मसलन अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैं तो आप अपने लिए बहुत सारे रेलेवेंट मटेरियल जो है वो यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फ्यूचर में कम्पेटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अब्रॉड कंट्रीज़ में देखें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, स्कॉलरशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या क्या क्या नई पॉलिसीज़ लेके आई जा रही हैं जो जिससे आप ना सिर्फ खुद अपने लिए कोई गाइडेंस सीख कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपकी सराउंडिंग में या मौजूद ज़रूर होंगे जो कि आपको जिनको आप गाइड कर सकते हैं कि जिनके लिए वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल साबित हो सकती है। यू कैन बी अ वर्थ वैल्यूएबल पर्सन जो कि इंफॉर्मेशन के लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हैं। इसके साथ साथ थर्ड थिंग है कि उन गोल्स को फुलफिल कैसे करना है आपने। इन गोल्स की फुलफिलमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट या चैलेंजिंग टास्क होता है कि जिसको हम एक नॉन सीरियस वे में लेते हैं कि हमें डिवाइड करना है कि कौन से गोल्स की प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले गोल्स के लिए प्रायोरिटी को सेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स कौन से हैं, आपने सबसे पहले कैसे अचीव करना है, और इसके साथ साथ नंबर सेकंड और थर्ड फोर्थ पे आप मतलब किन किन गोल्स को जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं। मसलन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मैंने बात की अभी आपके सामने स्ट्रेस मैनेजमेंट की और टाइम मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम जो है वो मनी मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। आज के दौर में महदूद समटाइम्स मेजॉरिटी ऑफ पीपल की मैं बात कर रहा हूँ कि आमदनी महदूद क्योंकि हैं और अखराजात क्योंकि ज़्यादा हैं, तो इस वजह से एक मुश्किल मरला होता है और हम समटाइम्स स्पेशली एट स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम अपनी लिमिटेड सैलरीज में से अपने अनलिमिटेड एक्सपेंसेस जो है ना, तो इकोनॉमिक्स का एक जर्नल रूल है, माशियात का एक जर्नल रूल होता है कि ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड और लिमिटेड, यानी कि इंसान के जो ज़राए होते हैं वो हमेशा से महदूद होते हैं और इंसान के जो अखराजात होते हैं वो हमेशा से लामहदूद होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप हज़ारों में कमाएंगे तो आपके खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, अगर आप लाखों में कमाते हैं उसके हिसाब से खर्चे हैं, अगर आप करोड़ों में कमाते हैं तो हमेशा से वो एक्सीड करते रहते हैं। सो दैट इज़ वाई वॉरेन बफेट जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, उसने फ्यू टिप्स बताई हैं कि कैसे आप फाइनेंशियली तौर पर प्रॉस्पेरिटी, उसने जो चंद टिप्स बताई हैं उसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप उसने ये बताई है कि अगर आप अपनी सेविंग्स की बात करते हैं तो हम सेविंग्स अपनी किस तरह करते हैं कि पहले सारे खर्चे कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें से
कुछ ना कुछ सेव करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे किसी मुश्किल वक्त में हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन ये सेविंग का इसलिए इतना अफेक्टिव सोर्स नहीं है क्योंकि हम समटाइम्स सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कर लेते हैं, फिर हमारे पास कुछ पैसे बचते ही नहीं है कि हम सेविंग कर सकें। तो सेविंग करना इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कॉन्टीजेंसी की सूरत में, किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में जब आपको रुपये पैसों की ज़रूरत है तो फिर हमारे लिए एक मुश्किल मरहला होता है। तो अपने फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ कि अगर आपकी आमदन 20,000 रुपये है तो आप अपनी आमदन को 20,000 ना समझें, आप अपनी आमदन को 18,000 समझें। मैं जस्ट आपको एक स्पेसिमेन दे रहा हूँ, मतलब आपकी व्हाट्स एवरेज इनकम, तो आपने एक अपना एक सेविंग प्लान इस तरीके से बना सकते हैं। सपोज कि 20,000 अगर आप 60,000 एज्यूम ना करें, क्योंकि आप अपने खर्चे फिर 20,000 के मुताबिक ही आपने रखे होंगे कि आपने ये खर्चा इस जगह पे कर लिया और दूसरा किसी और जगह पे। आप उसको एज्यूम करें कि योर इनकम इज़ ओनली 18,000 रुपीज़, तो वो मेरे पास कुछ ना कुछ सेव करते रहेंगे और आप 18,000 17,000 के मुताबिक अपने खर्चों को प्लान करें। तो देन नेवर मेक योर सेविंग्स आफ्टर योर एक्सपेंसेस, मेक योर सेविंग्स बिफोर द एक्सपेंसेस। तो ये एक बेस्ट ऐसा सोर्स है। तो इस तरह की और डिफरेंट चीज़ें हैं कि सपोज कि अगर आप फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट सक्सेसफुल बिजनेसमैन को रीड आउट करें कि कैसे आप महदूद आमदन के अंदर जो है, हमारे माइंड में समटाइम्स ये चीज़ प्रिवेल करती है कि लाजमी है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो या बहुत सारे ज़राए हों तो फिर ही हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इस तरह की सब चीज़ों को हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो वंस यू विल स्टडी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सक्सेसफुल पीपल, तो यू विल गेन मच नॉलेज अबाउट कि किस तरीके से हम अपने गोल्स को कैसे एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बन सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ के समटाइम्स आप सपोज इसको आप शेयर करते हैं बहुत सारे लोगों, आप अपने आप को एक लाइबिलिटी के अंदर लेके आते हैं कि मैंने ये काम अपने आप के साथ है। ये ख़ास तौर पे आपके जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, तो जब आप उनको बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं तो फिर आप अपने आप को मज़ीद, इसका मतलब है कि मुस्तैद बना, एक्टिव बना लेते हैं कि मैंने ये काम को पूरा करना है। तो इसको ज़रूर है कि आप अपने जो सराउंडिंग्स के लोग हैं, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनके साथ अपने गोल्स को शेयर करें, ताकि अच्छा होता है कि उनको शेयर करने से आई डोंट मीन कि पब्लिकली, आई मीन कि जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, तो फिर आप अपने आप को मज़ीद एक ज़िम्मेदारी में लेके आते हैं कि मैंने अपने इस गोल को पूरा करना है। और इसके साथ आखिरी बात ये कि एज़ फार एज बीइंग गोल ओरिएंटेड इज़ कंसर्न, कि अपने आप का एक जिसको हम उर्दू में करना, सो मुहासबा करना, यानी कि अकाउंटेबल करना, अपने आप को अपने आप के साथ ही अकाउंटेबल ज़रूर करें। हम समटाइम्स कंपैरिजन्स करते हैं, हम लगा रहे होते हैं जी कि फ़लाँ शख्स जो है वो हम उससे कितना आगे हैं और फ़लाँ शख्स से हम कितना पीछे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बेटर कंपैरिजन नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैट कि आप अपना कंपैरिजन अपने साथ करें कि लास्ट ईयर आप किस मकाम पर थे और आपने जो नेक्स्ट ईयर के लिए अपने गोल्स को अचीव करना चाहा तो उसमें से आपने कितने गोल्स को अचीव किया। आप लास्ट ईयर मतलब किसी भी पैरामीटर के मुताबिक आप किस प्लेस पर थे, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग किस प्लेस पे था, और इस साल मतलब वो सोर्स ऑफ अर्निंग किस प्लेस पर है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आप स्पिरिचुअलिटी में किस प्लेस पर, और आज मतलब उस स्पिरिचुअलिटी की किस प्लेस के ऊपर हैं। तो ये कंपैरिजन जो होता है वो आपको हमेशा से आगे बढ़ने के लिए एक तहरीक बख्शता है, एक मूवमेंट देता है कि जहाँ पे आप लाइफ के उन गोल्स को अचीव कर सकें जो कि आपने अपने लिए डिसाइड कर रखे हैं। तो ये यकीनी तौर पर पीस ऑफ माइंड आपको लाइफ में प्रोवाइड करेगा। सो उससे बढ़कर ये कि हमेशा मुस्बत सोचना है, अपने अंदर से तमाम तरह की जो नेगेटिव स्पिरिट्स हैं, चाहे वो किसी तरह से भी प्रिवेल करती हैं, चाहे वो मायूसी की सूरत में, खौफ की सूरत में, चाहे वो अनसर्टेनिटी की सूरत में, बेयकीनी की सूरत में, या मनफी बातें करने की सूरत में है, या किसी दूसरे इंसानों को जज करने की सूरत में है, या
मतलब क्रिटिसाइज स्पिरिट रखने की सूरत में है या किसी भी सूरत में आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो आप अपने आप के साथ तहिया करें कि हमने अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सन बनाना है। पॉजिटिव पर्सन बनना इटसेल्फ एक ग्रेट लाइफ में। और अब मैं समझता हूँ कि जब हम अपने आप के साथ तहिया करते हैं बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, तो हम लाइफ के हर स्टेज के ऊपर एक सक्सेसफुल और पीसफुल लाइफ ज़रूर गुजारते हैं। अदरवाइज अगर हमने नेगेटिविटीज़ को सोचना है तो सराउंडिंग्स में बेशुमार ऐसी मनफी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें से आप किसी भी एक चीज़ को अडॉप्ट करके आप नेगेटिविटी को अडॉप्ट करें और मायूसी के साथ ज़िंदगी गुजारते रहें। और फिर ये यकीनी तौर पर ऐसा होगा कि आप किसी ऐसे प्लेस पर आ जाएंगे कि जो लाइफ में आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि अब लाइफ में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। सो हमें ना सिर्फ बीइंग द ह्यूमन, ये लाइफ खुदा ने हमें एक गिफ्ट दी है, हमें इस गिफ्ट की ना सिर्फ हिफाजत करनी है बल्कि इस गिफ्ट को दीगर इंसानों के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाइफ का असल मकसद उस अजीम तोहफे को जो खुदा ने हमें ज़िंदगियों की सूरत में दी है दीगर इंसानों के साथ शेयर करना और अपने अपने जो आसपास के लोग हैं उनके लिए सोर्स ऑफ ब्लेसिंग भी बनना है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपने प्रोग्राम्स में बताया था कि इस साल खुदा ने चाहा तो हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला थोड़ा सा तब्दील करेंगे। इसमें हम आपके साथ गुज़िश्ता साल में हमने बहुत सारे लाइफ के इन पहलुओं को देखा, फियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, चैलेंजेस, ग्रोथ ओरिएंटेड और फेलियर्स एंड सक्सेसेस, इनके बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में हमने टीचिंग्स हासिल की। और इस साल खुदा ने चाहा तो हम आपके साथ ना इसमें एक न्यू सेगमेंट ऐड करेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग द जनरल नॉलेज थिंग, जो हमारी आम लाइफ से जिनका ताल्लुक है, जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो उस इन सेगमेंट्स को वी विल श्योरली ऐड इन आवर प्रोग्राम विजन इनसाइट। सो होपफुली आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। एंड बीइंग द होस्ट आई एम थैंकफुल ऑलवेज दैट यू कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग आइजक टीवी के का एसेट हैं जो ना सिर्फ रेगुलरिटी से आइजक टेलीविजन को देखते और प्रोग्राम को पसंद करते हैं और विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के होस्ट होते हुए जो कि तीसरा साल हो चला है कि आप आई एम थैंकफुल बीइंग द होस्ट के आपके फीडबैक का हमेशा से। और जैसा कि आपको वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर एंड पे कहा जाता है कि जैसा कि हम मुल्क में रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हम जहाँ कहीं पे भी मौजूद हैं, हम चाहे अपनी सराउंडिंग्स में, अपने नेबर्स में, अपने वर्क प्लेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हमारी ज़िंदगियों से हमेशा खुदा नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर ऑफ